Hello students, in previous all videos we have completed tense and their whole parts. And now I come with the chart of tense. I hope that by the chart you can understand all the things very easily, because you have discussed with example many of things in the different parts of tense, and I think many of them will confused or forget all the rules. That's why now I giving here the chart tense wise. So first of all I will describe present tense and their four parts with the help of the chart. Let's see. Present tense: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Is it? Just see what is rules. In affirmative, subject plus be1 plus, if it is singular then s and es, if it is plural then no change. I am just writing here s and es when singular with the condition of singular. Is it? The second is if. In indefinite negative sentence then nothing is difference, you have to use do not and does not. Do not for the plural and does not for singular. Is it? After that same thing, if it is interrogative then you have to start with do, does, okay, after that subject, after that V1 and rest of things. Okay. Affirmative, if it is in continuous affirmative then subject plus I, is, am, are plus V1 ing. Now here also is for singular and am for I and are for plural. I hope you understand and you are remembering that what I have described in the previous videos. Okay, just see next. Interrogative, if in continuous interrogative then you have to start with is, am, are. Same thing is here, is for the singular, am if I, is and are for the plural. After that subject and V1 ing. Is it? In perfect affirmative, what? Subject plus have, has and V3. Same thing is here, has for singular and have for plural. And next is in negative, subject has, have plus not and V3. Next interrogative, has, have, subject and V3. Just see, it is interrogative, that's why question word. What is helping verb is question word. Understood? So first of all you should write all the things in fair notebook in a fair part. Okay, I am describing first what present tense, after that I will describe past and future with the help of chart. Is it? Just let's see with the example. First one, affirmative of indefinite sentence, like Sita dances. Sita dances. What? Sita is subject and here is we, and here what is s and es. Why here s and es given? Because Sita is singular. Is it? Okay, next see. अब इसी में देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में अगर ये है तो कैसे चेंज होता है, नेगेटिव में हो तो कैसे चेंज करना है, तभी हम करते हैं नेगेटिव में. एज ए रूल हमें क्या करना है, सीता डांसेस जिसको नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सीता, व्हाट गिवन हियर, डू नॉट एंड डज नॉट, बट सीता इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई व्हाट यू हैव टू यूज हियर, सीता डज नॉट. सीता डज नॉट व्हाट, डांस. सी, मैंने क्या बोला था कि सिंगुलर के साथ एस और ईएस यूज होता है, इसलिए डांस में आपने एस का यूज किया था बिकॉज सीता इज सिंगुलर. बट जब हम डज का यूज किए यहाँ, इसलिए डांस में एस या ईएस का यूज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ईएस इसमें डू के साथ ऐड हो चुका है.
अंडरस्टूड? अब सिर्फ सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के क्या रूल्स हैं? डू, डज, सब्जेक्ट, B1, इज इट? अब फिर से हम यही देखेंगे, फोकस करेंगे कि सीता क्या है? सिंगुलर है। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट डू फॉर प्लूरल एंड डज फॉर सिंगुलर। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड, जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, उसे राइट करना है क्वेश्चनिंग क्रिएट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लाएंगे डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट सीता, डज सीता, आफ्टर दैट सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब। डज सीता डांस, यहाँ भी देखिए डज दिया हुआ है इसलिए यहाँ क्या आ गया? डांस, डांसेस नहीं आएगा। तो और यहाँ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, इज इट? ये देखिए आप तीनों रूल्स को ध्यान से, और ये देखिए तीनों रूल को मैंने यहाँ आपको एज एग्जाम्पल दिखा दिया, इज इट? नेक्स्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव विद वन एग्जाम्पल, ठीक है? अब चलिए, अगर हम चाहें तो इसी सेंटेंस को लेके यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस में भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस तरीके से? ये अगर मैं एक ही एग्जाम्पल लेके आपके सभी पार्ट्स को डिस्क्राइब करूं, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, इज इट? सो लेट्स सी। कंटिन्यूअस फॉर्म में अफर्मेटिव में क्या होगा? सीता, जैसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद इज, एम, आर। सीता सिंगुलर इसलिए क्या आएगा? इज, सीता इज। उसके बाद क्या है? वर्ब, वर्ब क्या है? डांस, सीता इज डांस। डांस में अब देखो वी, ये वर्ब है, वर्ब में क्या ऐड हुआ है? आईएनजी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आईएनजी, डांसिंग, सीता इज डांसिंग, सीता इज डांसिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब देखिए इसी से अब हमें क्या बनाना है? ये तो हमने अफर्मेटिव में चेंज किया। अब इसी को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या आता है? नॉट का यूज होता है। नॉट का यूज कैसे करेंगे? सीता इज नॉट डांसिंग, सीता इज नॉट डांसिंग। Is it? सीता इज नॉट डांसिंग। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सिर्फ सेंटेंस से हम बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो स्टार्ट किससे करेंगे? इज, बिकॉज सीता इज सिंगुलर। इज सीता, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया? सब्जेक्ट। इज सीता डांसिंग, ये देखिए कंटिन्यूअस में क्या हो गया? तीनों फॉर्म का हो गया। सीता इज डांसिंग, अफर्मेटिव हो गया। सीता इज नॉट डांसिंग, नेगेटिव। इज सीता डांसिंग, ये क्वेश्चनिंग। इंट्रोगेटिव, ये तीनों फॉर्म हमने इसमें भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट में क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पहले भी याद होगा कि हम यूज किसका करते हैं? हैव एंड हैज का। जैसे हियर क्या है? सब्जेक्ट, हैज, हैव एंड V3 आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स सी, सेम एग्जांपल वी विल टेक। सीता हैज, अब देखिए क्या लिखा है? V3। V3 में क्या करेंगे? डांस है तो डांस का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म डांस्ड। सीता हैज डांस्ड, इज इट? अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सीता हैज नॉट डांस्ड, इज इट? यहाँ हैज क्यों यूज हुआ? क्योंकि सीता सिंगुलर है और हैज का यूज सिर्फ सिंगुलर के साथ है, प्लूरल होता तो यहाँ क्या हो जाता? हैव। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि एक ही एग्जाम्पल से आप बहुत इजीली समझ सको हर एक सेंटेंस को।
इज इट। अब हम आएंगे इसके परफेक्ट के क्वेश्चनिंग में। अब क्वेश्चन के लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हम लिखेंगे हैज सीता डांसेस, हैज सीता डांस्ड, सॉरी हैज सीता डांस्ड, यानी क्वेश्चन बन गया, हैज पहले आ गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा। जस्ट सी ऑन द बोर्ड केयरफुली। अभी तक हमने क्या देखा, प्रेजेंट के तीन एग्जाम्पल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट नेगेटिव एंड प्रेजेंट इंटरोगेटिव, इज इट। आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा, कंटिन्यूस भी कंप्लीट हो गया और प्रेजेंट सिंपल भी कंप्लीट हो गया। रेस्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है आपको याद होगा, देखो नहीं है तो ये सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हैज हैव और उनके साथ बीन का यूज होता है, फिर V1 ING, इज इट। आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ थिंग्स। तो चलो फिर से हम इसे भी बनाते हैं, क्या, सीता हैज, जस्ट सी हैज के साथ क्या है, बीन, हैज बीन। आफ्टर दैट V1 के साथ क्या हो जाएगा, ING, तो V क्या है यहाँ, डांस, डांस के साथ क्या यूज होगा, ING, डांसिंग, सीता हैज बीन डांसिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, परफेक्ट फॉर्म हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सीता हैज बीन डांसिंग। अब इसके नेगेटिव में कैसे बनाएंगे हम, सीता हैज नॉट बीन डांसिंग। इज इट। ये आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था कि हैज़ और बीन के बीच में ही नॉट का यूज होता है, हैज़ बीन नॉट नहीं होता है, क्या होता है, सीता हैज़ नॉट बीन डांसिंग। ठीक है, अब इसको हम जब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में सेम वही चीज आएगा, क्या, हैज़ सीता not been dancing। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज इट। क्या है, हैज सीता नॉट बीन डांसिंग। आपको क्या इसमें डिफरेंस लगा, नथिंग, यू जस्ट हैव टू लर्न दीज रूल्स, ओके, एंड देन आई थिंक दैट देयर इज नो एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन इन द टेंस। जैसे कि सभी टेंस को बहुत बड़ा टेंशन मानते हैं, ये टेंस ये हमेशा कंफ्यूज करते रहता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे आप अगर आप पूरी तरीके से सिर्फ इस चार्ट को फॉलो करें, चार्ट को लर्न कर लें। एक बार मेमोराइज करने के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आपके टेंस के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। सी, वी हैव ऑलरेडी चेक एंड सी द चार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, 4 parts. Okay, now you just see this part. It is of past tense, 4 parts. Just see here, past tense, past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Is it? 4 parts is written here. Now again I am giving with example. You just see and try to understand all the parts. What in past tense? Write one past tense and read, like in present we have used Sita dances in simple. Now we will use, if you want to same example, no problem, we can take like Sita, रूल क्या है, V2, तो क्या हो जाएगा, सीता डांस्ड, सीता डांस्ड। आफ्टर दैट नेगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा, सीता डिड नॉट। क्या बताया है, डिड नॉट का यूज होना है किसमें, नेगेटिव में, डिड नॉट, और उसके साथ क्या है, V1 है। ध्यान से देखिए, पास्ट में क्या होता है, V2 का यूज होता है जनरली, लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव में डिड का यूज होता है, डिड नॉट का, तो डिड के साथ कभी भी V1 का ही यूज करना है। अंडरस्टूड। जैसे सीता डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म क्या आ गया इसका,
डांस, ठीक है, डिड नॉट डांस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड सीता, डिड सीता डांस। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड सीता डांस, यहाँ आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए ये तीनों हो गया आपके सेंटेंसेस, इन्फिनिट और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तीनों हो गए। अब कंटिन्यूअस में भी फिर हम इसी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। क्या सीता, ये पास्ट है इसलिए वाज और वोर का यूज होता है, यू नो वेरी वेल। वाज सिंगुलर के साथ और वॉर प्लूरल के साथ। व्हाट इज सीता हियर, सिंगुलर, सो वी हैव टू यूज वाज। सीता वाज, V1 के साथ क्या है, ING, सीता वाज डांसिंग, इज इट। अब ये नेगेटिव में हो तो क्या हो जाएगा, सीता, सॉरी, सीता वाज नॉट डांसिंग, इज इट। अब क्वेश्चनिंग करना होगा तो क्या होगा, ये वाज और वो पहले आ जाता है, तो देखिए कैसे बनेगा, वाज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, सीता, वाज सीता, वाज सीता डांसिंग, वाज सीता डांसिंग। देखिए सीता, यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट दैट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई ऑलवेज फॉरगेट। ओके, वाज सीता डांसिंग, ये क्वेश्चनिंग हो गया। ये भी तीनों पार्ट क्लियर हो गए किसके, कंटिन्यूअस के। देखिए आप यहाँ से फॉर्मूलाज को पुट करके देखिए, मैं पुट करके आपको साथ साथ एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, अभी समझने की इसे पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए परफेक्ट, परफेक्ट फॉर्म में हम कैसे करेंगे, सेम एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, ओके। ओके, व्हाट इज फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैड V3, जस्ट टेक सब्जेक्ट, व्हाट इज सीता, आफ्टर दैट हैड, सीता हैड। अब देखो थर्ड फॉर्म क्या होगा डांस का, डांस्ड, सीता हैड डांस्ड। अब देखिए अगर इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता हैड नॉट डांस्ड, इज इट। जो आपने एग्जाम्पल देखा वही है। नेक्स्ट देखिए, अगर ये क्वेश्चनिंग करते हैं तो क्या आएगा, पहले हैज़ आएगा या हैव आएगा, सॉरी ये पास्ट है इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, हैड, हैज़ नहीं हैड, इज इट। अब क्या होगा, हैड सब्जेक्ट V3। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चनिंग है इसलिए क्या आ गया, हैड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट सीता, हैड सीता डांस्ड, हैड सीता डांस्ड, सीता subject verb and here is what, had, given, this one is V3 and now question mark, is it understood, had सीता डांस। अब देखिए आप एक ही एग्जाम्पल से हम कब से आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को हमने क्लियर किया, फिर इसी एग्जाम्पल से हमने पास्ट टेंस के अब सभी जो इनके पास्ट टेंस के चार पार्ट्स हैं उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा रह गया है, उसे हम कंप्लीट करते हैं, क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके देखिए फॉर्मूलाज ये सामने आपको राइट किया हुआ है। अब फिर एग्जाम्पल हम यही लेंगे, सीता हैड बीन डांसिंग since morning yesterday, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, since yesterday morning,
मॉर्निंग वर्ड दिया हुआ है इसलिए यहाँ सिंस का यूज़ हुआ, या अगर ये आपको याद होगा मैंने डिस्क्राइब किया था कि अगर ये क्या होगा अनसर्टेन टाइम होगा तो यहाँ क्या होगा फॉर का यूज़ होगा, इज इट, फॉर का यूज़ होगा, लेकिन ये सिंस क्या है सर्टेन टाइम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ सिंस का, इज इट। अब इसके बाद हम क्लियर करेंगे फ्यूचर टेंस और उसके 4 पार्ट्स को बाय द हेल्प ऑफ चार्ट। ओके, आई एम जस्ट मेकिंग द चार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट, जस्ट सी फ्यूचर टेंस चार्ट. We have already discussed present tense all parts by the help of chart, past tense and their all parts by the help of this chart, and now it's a future tense. We will understand with the help of this chart by taking same example. Okay? Now see what we have taken the example Sita and dance, right? So let's see. सब्जेक्ट विल शैल V1 अफर्मेटिव में कैसे बताएंगे, सीता विल, देखिए अब क्या हुआ सीता के साथ विल है शैल और V1, सीता विल डांस, V1 है इसलिए ये डांस हो गया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता विल नॉट डांस। अब देखिए यहाँ पे सीता इसलिए विल लगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले क्या था कि विल और शैल का यूज़ होता था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विल का यूज़ सबके साथ होता था और शैल का यूज़ किसके साथ होता था, सिर्फ आई और वी के साथ। बट नाउ हर जगह किसका यूज़ हो रहा है, विल का। ये कोई मैटर नहीं है शैल और विल का, इज इट। तो क्या हो गया, सीता विल डांस, सीता विल नॉट डांस, ये नेगेटिव में हो गया। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन देखिए आप यहाँ कैसे है, आपके फॉर्मूला विल, हमने भी विल यहाँ ऐड किया। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, विल के बाद सब्जेक्ट सीता, विल सीता। आफ्टर दैट वी, विल सीता, वी क्या यहाँ डांस, विल सीता डांस, साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड। तो प्रेजेंट में हमने क्या किया था, सीता डांसेस, पास्ट में क्या किया था, सीता डांस्ड, और फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, सीता विल डांस, इज इट सेम थिंग। अब देखो कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है, इज एम आर के साथ आईएनजी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ विल भी या शैल भी, उसके बाद V1 के साथ आईएनजी ऐड होता है, इज इट। जस्ट सी क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास सीता विल बी, आफ्टर दैट डांसिंग, सीता विल बी डांसिंग। ये क्या बन गया, विल बी से फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए अगर ये नेगेटिव में हो तो क्या हो जाएगा, सीता, ये देखिए विल, विल, विल के बाद क्या आ गया, नॉट, विल नॉट बी डांसिंग, इट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। सॉरी ये क्यों क्वेश्चन होगा, ये तो नेगेटिव है हमारा, क्योंकि सीता विल नॉट बी डांसिंग, ठीक है। विल बी के साथ, विल बी के बाद नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि विल के बाद ही नॉट का यूज़ होगा, फिर आपका वी आएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, यहाँ आ जाएगा सेम थिंग, पहले क्या आएगा, विल, विल सीता, विल सीता बी, आफ्टर दैट V1 डांसिंग। अब यहाँ आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, विल सीता बी डांसिंग, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में फिर से हम वही एग्जाम्पल लेंगे। अफर्मेटिव में सीता, सब्जेक्ट के बाद क्या है, विल, शैल और हैव, सीता
will have, यहाँ वर्ब क्या है? डांस। डांस का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डांस्ड। इज इट? सीता विल हैव डांस्ड। अब इसको हम अगर नेगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीता will not have danced। अंडरस्टूड? देखिए कितना इजी है। फॉर्मूलाज के साथ किसी भी सेंटेंस को आप लीजिए, एक सिंपल सेंटेंस को लीजिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उससे पुट करके देखिए, इट्स वेरी इजी। और अगर आप इसे नोटबुक पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी भी सेंटेंस को लेके, तो आपके लिए टेंस बहुत ही इजी हो जाएगा। टेंशन नहीं होगा, बल्कि बहुत ही इजी हो जाएगा। इज इट? नेक्स्ट थिंग क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सेम आपको याद हो गया होगा अब तक। तो हमें क्या लेना है? पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। देखिए फॉर्मूला, विल शैल सब्जेक्ट, विल सीता, आफ्टर दैट हैव, विल सीता हैव क्या आएगा? डांस्ड। ठीक है, विल सीता हैव डांस। अब यहाँ क्या आना चाहिए बताइए? यस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग कर रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। ओके, अब ये तीनों कॉन्सेप्ट इसका भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फिर हम इसी का एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप इजीली समझ सकें। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सीता। आफ्टर दैट विल, सीता विल हैव। हैव के साथ क्या यूज हुआ है? बीन। हैव बीन, विल हैव बीन। वी के साथ आईएनजी यानी डांसिंग। ठीक है, सीता विल हैव बीन डांसिंग। अब इसके नेगेटिव को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सेम नॉट वर्ड को यूज करना है। वो कैसे करना है ये देखिए। सीता विल, जस्ट सी हियर, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल शैल, आफ्टर दैट हैव नॉट। यहाँ क्या करें? सीता विल हैव नॉट, आफ्टर दैट व्हाट गिवन हियर? बीन। यहाँ हम डालेंगे बीन, आफ्टर दैट वी एन आई एन जी। यहाँ भी हम भी करेंगे वी एन आई एन जी। क्या वी क्या है यहाँ पे? डांस, और उसमें आई एन जी डाला तो आ गया डांसिंग। सीता विल हैव नॉट बीन डांसिंग। इज इट? अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है इंट्रोगेटिव में। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये फॉर्मूलाज को देखिए, लास्ट में क्या दिया हुआ है? विल शैल सब्जेक्ट, हैव बीन V1 and ing, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। इज इट? जस्ट सी, विल सीता, विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट बीन, and then V1 and ing यानी dancing. Understood? There is no difference. Only you have to remember that in present continuous में क्या होता है? is, am, are और V1 और ing। ठीक है, अगर हम पास्ट में आते हैं तो was, were और V1 ing। अगर हम फ्यूचर में आते हैं तो एक ही डिफरेंस है, क्या? हमें will और shall का यूज़ करना है और उसके साथ साथ बी का यूज़ करना है। विल बी और शैल बी, उसके बाद V1 के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। बस यही डिफरेंस है। अब परफेक्ट में भी आते हैं तो परफेक्ट में जनरली हमें पता है कि क्या यूज़ होता है? हैव और हैड का यूज़ होता है प्रेजेंट में। पास्ट में सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज़ होता है। ठीक वैसी तरह फ्यूचर में क्या होता है? सिर्फ हैव का यूज़ होता है, उसमें कोई भी अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज़ होता है। अब ये इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूस में जाएं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तीनों में क्या होगा? हैव बीन, हैज़ बीन। यहाँ आ गया आपके प्रेजेंट में तो हैव बीन और हैज़ बीन दोनों होता है। पास्ट में सिर्फ हैड बीन होता है, लेकिन फ्यूचर में भी क्या होता है? सिर्फ हैव बीन होता है। यानी फ्यूचर में हैज़ नहीं होता और पास्ट में
हैज़ और हैव ना होकर हैड होता है. अंडरस्टूड? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग्स by the help of all the chart, and I tell you that all chart you just write in a page and just learn. After that tense concept you definitely complete and understood. Okay, bye. Next topics I will teach you in the next video. Till then, bye.